नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। अरुणाचल प्रदेश में बुधवार से 3 दिनों तक चलने वाले विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है। साल के पहले सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा ने प्रदेश को समृद्धि और विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की उम्मीद जताई। मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जारबोम गामलिन के निधन पर शोक जताया और कहा कि गामलिन का निधन प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति है और इस दुख की घड़ी में वो उनके परिवार के साथ है। इस दौरान नाबम तुकी ने पूर्व मंत्री सोबेंग तायांग और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सेतोंग सेना के निधन पर भी दुख जताया। तुकी ने कहा कि दोनों नेताओं ने प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिसे प्रदेश हमेशा याद रखेगा। Chief Minister, who passed away in November 2014 following a brief illness at Medanta Hospital, Gurgaon. Late Gamlin was an important political figure of the state who made immense contribution towards the state in various capacities during his long and distinguished political career. She was a renowned social activist, law luminary, and a dynamic leader. In regards to observing reference, respect of the dying former member of parliament from Arunachal and former minister and former MLA, who breathed his last in January 24, 2015 at his residence at Taprakam village, getting ill health for many days. He was one of the pioneers of modern Arunachal Pradesh. He was a man with a mission which he pursued till his last breath. Born in the year 1942 at Godalian village of undivided Lohit district, late time graduated from Banaras Hindu University, Uttar Pradesh, and did master degree in English from Guwahati University, Assam. Taiyang started his political career as a councillor of then Nepal in 1971. He became forest minister for 5 years in Sri P.K. Tongwon's government during Union Trip. Late Taiyang was first Mismi political figure to represent Lohit in the year 1965, when Inter Arunachal was divided under only 5 districts. I also stand here to participate in your reference in respect of Ved Chetong Sena, former Speaker of the Legislative Assembly, former Minister, and former member of this House. Late Chetong Sena was a man of wisdom, who lived from the throne and left behind a legacy to cherish. A renowned social activist, a politician par excellence, that Sena will always be remembered for his gest to usher development in his constituency, Nampong, as Speaker, Minister, Deputy Speaker, and MLA. Besides contributing his best for overall development of Arunachal Pradesh. I, along with my family members, my colleagues, legislators, and on behalf of people of Arunachal Pradesh, express our heartfelt condolences to the very family members. His contribution towards the community and the state shall always be remembered. The befitting tribute would be take inspirations from his deeds and contribute in state.
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने बुधवार को लुमतुंग से रोतेरोम और मिभासाले से नाराबाह तक सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के लोगों से अपील की कि वो ट्रांस अरुणाचल हाईवे का काम सुचारू रूप से चलने दें और काम कर रही एजेंसियों का सहयोग करें। मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने ट्रांस अरुणाचल हाईवे को महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना बताते हुए कहा कि आने वाले समय में ट्रांस अरुणाचल हाईवे प्रदेश की जीवन रेखा साबित होगा। इसके साथ ही नाबम तुकी ने सभी सड़क परियोजनाओं को पर्यटन के लिहाज से भी बेहद अहम बताया। तुकी ने यह भी कहा कि ट्रांस अरुणाचल हाईवे बनने के बाद पासा, पापू और पाके घाटियों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। तुकी ने सभी लोगों से आग्रह किया कि वो सड़क परियोजनाओं में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न ना करें और अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो वो प्रशासन से संपर्क करे। सड़कों के शिलान्यास के दौरान आरडब्ल्यूडी मंत्री कुमार वाई, संसदीय सचिव कुमसी सिदिसोव, कार्या बागांग और तापुक ताकू सहित कई लोग मौजूद थे। त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूती देने के लिए ट्राइबल समुदायों को जोड़ने की कवायद में जुट गई है। इसके लिए पार्टी कांग्रेस मोटिवेटर ट्राइबल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। बुधवार को त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष ब्रिजीत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इसके लिए पार्टी टीपीसीसी के 9 संगठनात्मक जिलों में से कुल 225 ट्राइबल पुरुष और महिला कार्यकर्ताओं का चयन करेगी। ये कार्यकर्ता हर निर्वाचन क्षेत्र से कम 5 जनजातीय लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। बता दें कि त्रिपुरा में मौजूदा लेफ्ट सरकार को इन ट्राइबल समुदायों का काफी समर्थन प्राप्त है। ऐसे में इन वोटर्स को अपनी तरफ मोड़ना कांग्रेस के लिए और भी जरूरी हो गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ केंद्र सरकार को घेरने का फैसला भी किया है। আমরা সাংগঠনিকভাবে প্রস্তুতি শুরু করেছি এবং আমাদের ট্রাইবাল লিডাররা তো আছেনই, ছাড়াও আমরা প্রদেশ কংগ্রেস থেকে আমরা একটা মনস্থ করেছি, মানে ডিসিশন নিয়েছি যে সারা ত্রিপুরায় কংগ্রেসের 9টি ডিস্ট্রিক্ট আছে, প্রশাসনে 8টি ডিস্ট্রিক্ট এবং 9টি ডিস্ট্রিক্ট থেকে 25 জন করে ট্রাইবাল বিশেষ আমাদের কংগ্রেসের ট্রাইবাল ওয়ার্কারদের পুরুষ মহিলা আমরা এখন তালিকা তৈরি শুরু হয়ে গেছে। ईटानगर में गुरुवार को ऑल अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन ने अरुणाचल सशस्त्र पुलिस के तीसरे बैच के गठन की मांग को लेकर 12 घंटे का बंद का आह्वान किया। ईटानगर में बंद का खासा असर देखने को मिला। जहां एक तरफ ज्यादातर दुकानें बंद रहीं, वहीं सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा रहा। बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन का यह आरोप है कि 1988 और 1999 में पहले और दूसरे बैच की भर्ती की गई थी, लेकिन उसके बाद से तीसरे बैच के लिए भर्ती नहीं की गई है, जिसके कारण राज्य में पुलिस कर्मियों की कमी हो गई है। ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष युमलम आचुंग ने बंद पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वो राज्य में बंद का समर्थन नहीं करते, फिर चाहे मांग जायज ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदारों को दुकानें बंद न करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन किसी घटना के घटित होने के डर से सभी ने दुकानें बंद रखी हैं। आइमा प्रेसिडेंट युमलम आचुंग के पास आए हुए हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये एग्जैक्टली कंडीशन या फिर सिचुएशन जो है इसको आप किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज देखा गया है कि मार्केट एरिया बिल्कुल लगभग बंद है, तो ऐसे में क्या सोचा जाए कि आइमा जो है इस बंद कॉल को सपोर्ट कर रहे हैं। ये आज का जो बंद कॉल है तो वो बंद कॉल लड़का लोग का जो प्रेसिडेंट बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन का जो प्रेसिडेंट जो उन लोग का जो एक्टिविटीज़ और जिस प्रकार से करे वो तो वे ऑफ डेमोक्रेटिक में नहीं है, तो मैं तो उन लोग का जो डिमांड को हम सपोर्ट करता है। लेकिन आज का जो बंद कॉल है तो हमारा दुकानदार का तरफ से यूनियन का तरफ से सपोर्ट है बोल के दुकान बंद नहीं है। हमारा जितना यहाँ में बिजनेस कम्युनिटी जितना दुकानदार जो है बाहर का है, बंद कॉल बोला तो डर के बंद कर दिया, लेकिन बंद कॉल से सोल्यूशन नहीं होगा। डेमोक्रेटिक वे में उसको उन्होंने बात करने से ठीक है। और सबसे बड़ा बात वही है कि हमारा गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का जो चीफ मिनिस्टर और जो अभी जो है होम मिनिस्टर दोनों जो है कैसे पब्लिक रिलेशन रखना है, कैसे अपना स्टाफ लोग से रिलेशन रखना है, ऑफिसर से, मार्केट कमेटी से, इंजर्स लोग से, मीडिया लोग से कैसा मिल के रहना है, वो उन लोग का पास में फिलर है। गवर्नमेंट इसको जो स्पेशल सिक्योरिटी इसको जो स्टेट को जो उन लोग केयर करना चाहिए, कैसा पुलिस फोर्स को डिप्लॉय करेगा, कैसा बॉर्डर में पुलिस फोर्स को काम करने देना है, मार्केट में कैसा काम कर देना है, ये स्पेशल स्टेट गवर्नमेंट का है। और स्पेशल स्टेट गवर्नमेंट बोल के चीफ मिनिस्टर का और होम मिनिस्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए सकने से ठीक है एज
चेयर पे बैठा हुआ। तो वो हम लोग का वही अपील है कि आम आदमी का सब अपील है कि अपना ड्यूटी को मालूम होने से ठीक है। तो ये थे ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट युमलम आचुंग, और इनका ये मानना है कि जो बंद कॉल किया गया है ये बहुत ही गलत तरीका है, और इनका ये अपील है ऑल अरुणाचल बॉर्डर स्टूडेंट्स यूनियन को कि डेमोक्रेटिक वे में कई सारे जैसे कि धरना या फिर रैली या फिर जो भी रिसेंटली जो हंगर स्ट्राइक करके एपीसीएस के मुद्दे को लेकर, डिमांड को लेकर सक्सेसफुल हुए हैं, इस तरह के प्रोसेस को लेकर, इस तरह के मेथड को लेकर कोई भी अपना डिमांड या फिर अपना आवाज़ को सरकार के तरफ पहुंचा सकते हैं। तो और इन्होंने अपील किया है कि अगर डिमांड सही है तो वे ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट वो भी सही होना चाहिए ताकि हर किसी का सपोर्ट मिल सके। कैमरामैन इंदिरा के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर में इम्फाल पश्चिम जिले के कादंगबंद में बुधवार को असम राइफल्स और कुकी नेशनल फ्रंट उग्रवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 संदिग्ध मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए हैं। मारे गए संदिग्धों में एक आम नागरिक भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक बुधवार रात असम राइफल्स के सैनिकों का दल कदांगबंद इलाके में गश्त कर रहा था। उसी दौरान कार सवार कुछ हमलावरों ने सैनिकों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए सैनिकों ने भी उग्रवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुठभेड़ में जख्मी हुए संदिग्धों को रिम्स ले जाया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मुठभेड़ में मारे गए उग्रवादियों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। My name is Pauzikin Hangsing, and I live in Kangsup Sungho. The owner of the car is my auntie's husband, and he's a very down-to-earth person. Everyone knows him as a very simple man, and he has no quarrel with anyone ever in his life. Do you have any idea what really happened yesterday? Actually, at what time? it happens. They were visiting a family's friend in Modbong. They came back from Modbong. As soon as they reached their home, he didn't even change his clothes, and he was hungry, and he was about to eat food. But then some people came and they told them, they forcefully took him. And what happened after that is that even he said, let me have some food or let me change my clothes. I'm very tired. I just came back from Modbong and I'm very exhausted. I don't want to come. Yeah, this kind of incidents occasionally happen in this area, especially in Manipur, where this law and order the situation is very bad, and this is mainly the failure of the government, the present government. And whereas the security forces have been given this free hand, while detecting all this underground movement, all these things, they should identify who is really the person, who is civilian or who is underground, whether they have any identity of the underground ICAR or not. How can I identify that vehicle coming in a village road? How can they stop and blank fire? This kind of incidents, the people of this area and mainly the people of Manipur strongly condemn these things, and this should not happen again and again. Okay. वेस्ट त्रिपुरा जिले के मोहनपुर सब डिवीजन में मंगलवार को कतलामारा अस्पताल की आशा कार्यकर्ताओं ने पूरा वेतन न मिलने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और मोहनपुर से अगरतला सड़क पर चक्का जाम लगा दिया। आशा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पिछले 1.5 साल से उन्हें मूल वेतन से 33% कम वेतन दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं की मांग है कि जल्द से जल्द उन्हें बकाई राशि दी जाए और भविष्य में पूरा वेतन देने का वादा भी किया जाए। कार्यकर्ताओं के इस प्रदर्शन से घंटों सड़क पर जाम लगा रहा और आवाजाही भी पूरी तरह से ठप रही। वहीं अस्पताल के सेकंड मेडिकल ऑफिसर अजय पॉल ने मौके पर पहुंचकर आशा कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर उन्हें बकाया राशि दे दी जाएगी। अजय पॉल के इस आश्वासन के बाद कार्यकर्ताओं ने धरना तो खत्म कर दिया, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अगर समय रहते उन्हें पैसे नहीं मिले तो वो फिर से सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। আমরা মূল দাবি আমরা পারিশ্রমিক করি আমরা কোনো টাকা পাই না, ঠিকমতো টাকা পাই না। এই টাকার লেগে আমরা হয়রানি করতে হয়। এরপরে আমাদের মাসে মাসে 8 বছর ট্রেনিং করি, আমরা মাঠে বসে ক্লাস করতে লাগে, আমরা বসার জায়গা নাই। আমরা এই বসার জায়গা 33% টাকা আজ যা প্রায় 1.5 বছর ধরে আমরা 33% টাকা আমরা পাই না। खबरों के संग में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।